ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ +2 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਲਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਮੀਨਸ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਾਰਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 3 ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਟਾਈਲ, ਸਟਿਗਮਾ ਐਂਡ ਓਵਰੀ। ਡਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਲੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ, ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ, ਦੇਰ ਆਰ 2 ਪਾਰਟਸ ਫॉर ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਪਾਰਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਆਪਣੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡਸ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਫਲਾਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਫਲਾਰ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਪਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਲਾਸਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਫਸਟ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਐਂਥਰ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਗਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ 2 ਲੋਬਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਂਥਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਟੈਮਨ, ਰਾਈਟ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਔਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਲਾਰ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਟਿਗਮਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਓਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਪਲ। ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਪਲ? ਕਾਰਪਲ ਇਜ਼ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ। ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਲਾਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਂਥਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਲਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਿਮਿਲਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਓਵਰੀ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰੈਂਜੀਆ, ठीक है। क्लियर? एंथर ने प्रोड्यूस करने हैं मेल गैमीट एंड ओवरी ने प्रोड्यूस करने हैं फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फीमेल गैमीट्स आर नोन एज मैगास्पोरेंजिया। हुण जदों माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैगास्पोरेंजिया दे बोथ मीट, that is called as fertilization। ये तुहानूं एक टर्म आएगी कि वट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की है जो मेल गैमीट ते फीमेल गैमीट आपस दे विच मीट करनगे, मीन टू से माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैगास्पोरेंजिया आपस दे विच मिलणगे, दैन फर्टिलाइजेशन जिहड़ी है वो होएगी।
what will happen after fertilization? What happens after fertilization? फर्टिलाइजेशन तो बाद की होएगा, जेडे ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स मीन्स जेडे ओवरी दे अंदर सैल्स पे हैं, जेडे गैमीट्स पे हैं, उन्होंने असी ओव्यूल टर्म भी यूज़ करते हैं। जेडे ओव्यूल्स हैं वो गैट्स कन्वर्ट इनटू किहदे च कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड दे विच, सीड्स दे विच कन्वर्ट हो जाएंगे। जिहड़ी ओवरी है, ओवरी गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्रूट, फ्रूट बन जाएगा उहदा। ओवरी दी जिहड़ी वॉल है गेट्स कन्वर्ट इनटू पेरिकैप ऑफ फ्रूट। पेरिकैप की होएगा? हुण इत्थे एक नवीं टर्म आ गई। पेरिकैप का मतलब है कोई भी फ्रूट तुसीं लै लो उहदी आउटर कवरिंग। लेट्स सी मैंगो, मैंगो दी आउटर कवरिंग, मैंगो इज़ अ फ्रूट। इहदी जिहड़ी आउटर कवरिंग है जिन्हों असीं छिलका कह दिंदे आ फ्रूट दा, वो है पेरिकैप। उहदे अंदर जिहड़ी गुठली है दैट इज़ सीड, ओहदा सीड है, सिंगल सीड हुंदा ओहदे अंदर। तो जिहड़ी ओवरी है दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, कंप्लीट फ्रूट बन गई। वो समझ गए? ये सारा प्रोसैस हुंदा कदों? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन की सी, जो मेल गैमीट्स ते फीमेल गैमीट्स दैट मीनस माइक्रोस्पोरेंजी एंड मेगास्पोरेंजी आपस विच मिले, फर्टिलाइजेशन हैपन एंड दैन की चीज़ां होईयां? 3 चीज़ां होईयां। तिन्नां चीज़ां नूं तुसीं याद रखना है। अगे है जी थैलामस। एक टर्म आती है तुहाडी बुक दे विच, थैलामस, जिन्हों असी बहुत सारी बुक्स दे विच रिसेप्टिकल भी लिखते हैं। हुण थैलामस की है? आपां एक फ्लावर दी डायग्राम कीती सी। सपोज आप एक छोटा जिहा फ्लावर बनाते हैं, तो बच्चे यह जिहड़ी इहदी फ्लावर जिथों आपां तोड़ते हैं ना फ्लावर नूं, जानी उहदी डंडी, उहनूं की बोलते हैं? पैडिसल। ये है पैडिसल। और जिहड़ा इहदा बेस है फ्लावर दा, डंडी नूं छड्ड के जिहड़ा फ्लावर दा नीचे वाला हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड थैलामस। एक्चुअल अगर तुसीं इहनूं डिफाइन करना होए, इट इज़ द बेस ऑफ फ्लावर, इट इज़ द बेस ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का यह की है? बेस हुंदा है, राइट। और इसे बेस दे नाल अगे सैपल्स, जिहड़े कि आपां पार्ट्स फस्ट वीडियो दे विच पढ़े सी, सैपल्स, पैटल्स और फर्दर जो भी है सेंटर जिहड़े एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जिहड़े सारे पार्ट्स हैं, स्टैमन हो गया, कार्पल हो गए, वो सब जो अटैच्ड हैं दैट आर अटैच्ड ओनली टू द थैलामस। और जी डंडी तो असी फ्लावर नूं तोड़ते हैं, डंडी जी कि अटैच है इंटरनोड के नाल, दैट इज़ कॉल्ड एज पैडिसल। नैक्सट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो अपना नैक्सट टॉपिक है तुहाडी बुक दे विच। आपां टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं ताकि तुहानूं बुक तो रीड करना ईजी रहे, तुहाडे कोल तुहाडे नोट्स भी बनते रहन पैरलल साइड बाय साइड, और तुसीं बुक नूं भी फॉलो कर सको। अपनी बुक दे विच नैक्सट टॉपिक हैगा फंक्शनस ऑफ फ्लावर। हुण फ्लावर दे देखो की काम है। पहला तो सानू सीधी जी गल समझ आती है कि अगर फ्लावर ही नहीं होएगा तो उहदे अगर मेल एंड फीमेल पार्ट्स ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी तो सीड्स नहीं बननगे, सीड्स नहीं बननगे तो फर्दर प्लांट्स की जिहड़ी हैगी है पॉपुलेशन वो इनक्रीज़ नहीं होएगी। पॉपुलेशन मीनस प्लांट्स अगे ग्रो ही नहीं करेंगे। सानू पता है किसी भी तरह की प्लांट असी उगाना है,
चाहे घर च उगाना है, चाहे असी कोई फसल उगाते हैं तो असी पहले सीड्स ही लगाते हैं ना, सीड्स तो ही अगे प्लांट्स डिवेलप करते हैं। तो सीड कदों डिवेलप होएगा? विद द हैल्प ऑफ अ फ्लावर। इट डजेंट मैटर कि फ्लावर सिर्फ कलरफुल ही होंगे हैं। फ्लावर वो पार्ट जिहड़ा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। मैं आप लास्ट वीडियो दे विच ये गल कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह। तो फर्स्ट पॉइंट तुसीं इहदे विच लिखोगे फ्लावर्स गिव सीड्स। कादे लई दिंदे हैं सीड्स? फॉर फर्टिलाइजेशन। सेकंड है फ्लावर्स डिफरेंट शेप्स, जड़ियां इन्हां दियां डिफरेंट शेप्स ने, अलग अलग तरह शेप दे असी फ्लावर देखते हैं, अलग अलग तरह के। हुण सूरजमुखी का फुल बहुत वड्डा है, गुलाब का फुल अलग तरह का है, असी दूर तो एक नज़र नाल देख के डिफरेंशिएट कर लैंदे भी आ किहड़ा फ्लावर है। हुण गोभी की सब्जी खाने उहदा भी एक फुल है, ठीक है। तो वो जिहड़े फ्लावर्स है डिफरेंट शेप्स हैं, वो क्यों होंदी है? हैल्प्स इन पॉलीनेशन की है आप आगे पढ़ांगे। मोटा जिहा इत्थे दस दिंदी आ कि पॉलीनेशन सीड्स नू डिस्पर्स करन दे लई हैल्प करती है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज कॉल्ड पॉलीनेशन। सीड्स नू असी मैनुअली भी असी डिस्पर्स करते हैं, हत्थां नाल छिट्टा भी दिंदे आ। सीड्स नू असी वाया मशीन्स भी असी जिहड़ा सो करते हैं मिट्टी दे विच। सीड्स अपने आप भी वाया विंड, वाया बर्ड्स अपने आप भी डिस्पर्स होंदे रहंदे हैं। समटाइम असी देखते हैं असी तो प्लांट ग्रो किया ही नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ कोई सीड नू सो किया ही नहीं हुंदा, फिर भी वो साडे घर दे बगीचे दे विच, क्यारी दे विच, गमले दे विच समटाइम वो अपने आप ही उग जाता है। तो कितों तो सीड आए ना। तो सीड्स की जी डिस्पर्सल है दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीनेशन। ये अलग तो एक तुहाडा टॉपिक है, बहुत वड्डा वास्ट टॉपिक है। किस तरह पॉलीनेशन होंदी है, किहड़े एजेंट्स उहदे च हेल्प करते हैं, वो आप अगे डिटेल्स फर्दर करांगे। हजे सिर्फ तुहानूं मैं पॉलीनेशन क्योंकि टर्म आई है तो मैं तुहानूं ਉਹਦਾ मीनिंग दसता कि तुसीं उलझो ना कि पॉलीनेशन वट इज़ दिस। तो ਉਹਦੇ ਲਈ दसता कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज़ कॉल्ड एज पॉलीनेशन। दैट्स इट। फिलहाल तुसीं सिर्फ इत्थे इन्ना ही याद रखना है। थर्ड की है, अच्छा आपां हुण लास्ट कीता है, तुसीं दसना मैनूं कि ओवरी बच्चे किहदे च कन्वर्ट होई सी? ओवरी फ्लावर का ही पार्ट है, फीमेल साइड तो आया है। तो ओवरी किहदे च कन्वर्ट होई सी? दसो शाबाश फटाफट। ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, वेरी गुड, फ्रूट। ओवरी तो ही फ्रूट बनया सी, ठीक है जी। एंड ओव्यूल्स किहदे च कन्वर्ट होए सी? ओव्यूल्स भी तुहानूं पता है गैमीट्स ने, ठीक है। ओवरी दे अंदर जिहड़े फीमेल गैमीट्स पए हैं दैट आर ओव्यूल्स। ते ओव्यूल्स किहदे च कन्वर्ट होए सी? दसो। इनटू सीड्स। सीड्स दे विच ओव्यूल्स कन्वर्ट हो गए। फोर्थ है जिहड़ा फ्लावर है also helps in dispersal of seeds and fruit. In dispersal of seeds plus fruit, फ्लावर अपने आप भी हेल्प करता है सीड्स नू डिस्पर्स करन च। हुण इत्थे एग्जाम्पल दिंने आ, लाइक किद्दां फ्लावर अट्रैक्ट करता है, अगर सानू अट्रैक्ट करता है किस तरह नाल, उन्होंने देख के अट्रैक्ट होने असी कि कितना सोहना फुल है, किन्ने सोहने उहदे कलरफुल उहदे पत्ते ने। पत्तियां नू की कहने आ? पैटल्स। की कहने आ? दसो फटाफट। तो असी अट्रैक्ट होए। सम फ्लावर्स जिहड़े आ फ्रैगनेंस दे नाल अपने अट्रैक्ट करते हैं सानू एज वैल एज कीड़े मकोड़ियां नू, इंसैक्ट्स नू, एज वैल एज बर्ड्स नू। हुण सोचो कि कोई इंसैक्ट किसी फ्लावर के उपर आके बैठता है तो उहदी लैग्स दे नाल जिहड़े उहदे पोलनस ने, पोलनस भी आप अगे फर्दर डिटेल च पढ़ते हैं, उहदे नाल उहदे स्टिक हो जाते हैं, उहदे बॉडी दे नाल उहदे नाल चिपक जाते हैं। तो अगे जिथे भी फर्दर वो इंसैक्ट जाके बैठेगा तो उत्थे उहनूं श्रैड कर देगा। तो सीड जिहड़े उत्थे ऑटोमैटिकली सो हो जाएंगे एंड फर्दर दैन ग्रो हो जाएंगे।
ठीक है। तो हैल्प किने किया फ्लावर ने? अगर फ्लावर ही अट्रैक्टिव नहीं होंदा तो ना तो कोई सीड ना कोई इंसैक्ट उहदे वल जांदा ते ना ही कोई बर्ड उहदे वल जांदा। अगर वो अट्रैक्टिव ना हुंदा जां उहदी फ्रैगनेंस अच्छी नहीं हुंदी, अट्रैक्टिव ना हुंदी, आई मीन टू से, तो फ्लावर जिहड़े आ वो सीड्स एंड फ्रूट्स नू डिस्पर्स करन च भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गए साढ़े फंक्शनस ऑफ फ्लावर्स। इत्थों तक कोई कन्फ्यूजन होए तुसीं मैनूं कमेंट्स बॉक्स दे विच जाके कमेंट्स करके पूछ सकते हो। कोई भी टर्म तुहानूं नहीं समझ आती आपां उहनूं दोबारा एलैबोरेट करांगे, आपां स्लो एंड स्टडी चलांगे। दैट्स वाई कि सानूं चीज़ां क्लैरीफाई होंदी रहन, साडा नीट भी नाल दी नाल ओहदी भी तैयारी हुंदी रहे। हुण फर्दर प्री मीनस पहला, फर्टिलाइजेशन होने तो पहला। आई होप कि हुण तक तुहानूं फर्टिलाइजेशन पता चल गया होएगा। इट्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होने तो पहले की हुंदा एक फ्लावर दे अंदर सो मैनी हार्मोनल प्लस स्ट्रक्चरल चेंजिस जिहड़ियां अकर्स। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस भी होंगी हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगी हैं। फ्लोरल फ्लोरल बर्ड्स आर डेवलप्ड। तुसी देखा होएगा जदों भी किसी फ्लावर नूं प्लांट नूं ऑब्जर्व करो जिदे फ्लावर लगते होना स्पैशली, तो फ्लावर एकदम नहीं लग जाता। सब तो पहले एक बड बनती है, उस बड तो अगे फ्लावर ग्रो करता है। तो फ्लोरल बर्ड्स ये सारा प्रोसैस फर्टिलाइजेशन होने तो पहले होंदा है। फ्लोरल बर्ड्स डिवेलप होंदी हैं, दैट उहदे लई असीं एक टर्म यूज़ करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इहदे लई टर्म यूज़ करते हैं कि फ्लोरल बड बननी स्टार्ट होगी, हुण उस बड तो अगे फ्लावर जिहड़ा वो फ्लावर जिहड़ा ग्रो करेगा। हुण फ्लावर ग्रो करेगा तो ऑबवियस जी गल है, तो वो अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स डिवेलप होंगे। एक बार आप फर्दर छोटा जिहा रिकैपिचुलेशन कर लेंदे आ कि मेल पार्ट नूं की बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट नूं की बोलते हैं गायनोशियम। एंड्रोशियम किसी स्टैमन, स्टैमन च एंथर एंड फिलामेंट, गायनोशियम कार्पल, कार्पल दे फर्दर 3 पार्ट स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी दे अंदर ओव्यूल्स है, मेगास्पोरेंजिया बनाती है दैट आर फीमेल गैमीट्स, और इधर जो एंथर है उहदे अंदर की बनते हैं मेल गैमीट्स विच आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। हुण ओवरी दे अंदर जोड़े फीमेल गैमीट्स हैं दैट आर नोन एज ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो फर्टिलाइजेशन होगी तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, एंड ओवरी दी जिहड़ी आउटर वॉल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट दी आउटर एरिया, जिन्होंने असीं छिलका बोलते हैं सिंपल पंजाबी भाषा दे विच, तां ओनू की कहते हैं पेरिकैप। फिर आप फर्दर टर्म की सी थैलामस। थैलामस की है फ्लावर दा बेस। ठीक है, जिथे ओदी जिहड़ी डंडी है उन्होंने की बोलते हैं, एक टर्म आई सी बच्चों पैडिसल। ठीक है, राइट, पैडिसल, थैलामस, थैलामस फ्लावर दा बेस, और उपर सारे पार्ट्स लगे हैं उहदे, पैटल्स, सैपल्स, कार्पल्स, स्टैमन, सब कुछ उहदे उपर है। उहदे बेस नूं जस्ट आपां थैलामस और रिसेप्टिकल बोलना है। उस तो बाद आपां एक टर्म की सी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैं तुहानूं दसदा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया दी दा फ्यूजन। फिर आपां कीता फ्लावर दे फंक्शनस की हैं, उहदे च एक टर्म आई सी पॉलीनेशन दैट इज़ द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। हुण आपां जस्ट नाउ कीता है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो पहले की होया? पहले की होया बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस लाइक जो साडी बॉडी दे विच भी होंदे हैं, सिमिलरली बहुत सारी चीज़ां प्लांट्स दे विच हैपन होंदियां हैं। तो हार्मोनल तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आंदियां प्लांट दे अंदर। फ्लोरल बर्ड्स बनती हैं, जो फ्लोरल बर्ड डिवेलप करती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। राइट, इत्थों तक क्लीयर है जी? एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी एनी टाइम।
चलिए जी अगे ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ मैं तुहानू पहली वीडियो च भी कहा सी कि ये टर्म्स इन्नी बार रिपीट होणगियां कि तुहानू फिर मूँह जबानी याद हो जाणगियां। पहली वारी टर्म जदों सुनोगे तो लगेगा कि ये बड़ी औखी टर्म है, लेकिन जदों भी असीं इहनूं बार बार रिपीट करी जावांगे तो ये टर्म्स सानू बहुत ईजी लगन लग जाणगियां। हुण तुसीं 2-4 वीडियोज़ तो बाद खुद बोलोगे कि फर्टिलाइजेशन तो पता है जी, ठीक है। हर टर्म एंड्रोशियम, गायनोशियम, सैपल्स, पैटल्स तुहानू मूँह जबानी याद हो जाएंगे, तुहानू इन्हां नूं कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पैनी। हुण आपां फिर दोबारा प्रायर फिर उस प्रोसैस ते आ जाने आ, स्टार्ट करते हैं क्योंकि असीं गल कर रहे हैं बच्चों रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो सारा प्रोसैस जिहड़ा साडा मेल एंड फीमेल पार्ट्स के सराउंडिंग ही रहना है। हुण ये मैनूं तुसीं दसोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किहड़ा है एक प्लांट का, एक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किहड़ा हुंदा है। वेरी गुड, हरी अप, दैट इज एंड्रोशियम, राइट। एंड्रोशियम दे लई असीं होर की बोलदे हैं स्टैमन, उहदे जिहड़े सैक्शुअल पार्ट स्टैमन। स्टैमन दे अगे फर्दर 2 पार्ट बोलो कोई फटाफट, किहड़े किहड़े 2 पार्ट सीगे हुणे ही आपां दस्से हैं। एंथर, राइट, एंड सेकंड वन वाज फिलामेंट, ठीक है जी। हुण एंथर जिहड़ा है यह की है फर्टाइल पार्ट, फर्टाइल पार्ट है किदा स्टैमन दा, यानी इसे पार्ट ने रिप्रोडक्शन च अगे हैल्प करनी है। जिहड़ा फिलामेंट है वह सिर्फ की काम है, उन्हें एंथर नूं सपोर्ट करनी है। लाइक देखो आ एंथर है 2 लोब्स, आ फिलामेंट है, फिलामेंट का काम इन्हें इन्हां 2 लोब्स नूं इस एंथर वाले पोर्शन नूं सपोर्ट करनी है, ठीक है। यह की है अटैच्ड टू द थैलामस। हुण तुहानूं थैलामस का पता होएगा कि की हुंदा थैलामस, ठीक है जी। हुण जां तां ये थैलामस नाल अटैच होएगा डायरैक्टली बेस नाल ही, या फिर की होएगा पैटल, किसी पैटल नाल अटैच होएगा, या फिर की होएगा टैपल। हुण टैपल एक नवीं टर्म आ गई, इत्थे पै गया पंगा, एक होर टर्म आ गई टैपल। इनू असीं टैपल नूं एक होर कई बार ना उलझाण वास्ते पेपर दे विच पुछ लैंदे आ, इनू असीं पैरी एंथ भी कहने हैं। मेरे को बोर्ड थोड़ा जिहा छोटा है, दैट्स वाई थोड़ी जी ट्रबल हो रही है। आपां ट्राई करांगे कि थोड़ी जी इंप्रूवमेंट की जाए फरदर। टैपल, टैपल नूं असीं पैरी एंथ भी कहने, मैं तुहानूं इत्थे दसदी हां, तुसीं ये याद रखना मैं रब कर रही हां कि असीं सिर्फ अजे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नूं ही एलैबोरेट कर रहे हां, ਉਹਨੂੰ ही फरदर समझ रहे हैं ਉਹਦੇ पार्ट्स ਨੂੰ, राइट। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ टर्म बोली सी टैपल, टैपल ਦੇ ਨਾਲ फिलामेंट अटैच होएगा। टैपल ਨੂੰ एक होर नाम ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੈਰੀਐਂਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, सम टाइम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, sepals, when sepals and petals आपस की होंगे हैं आर फ्यूज्ड, आपस च फ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने सैपरेट कर पाना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता। यानी आउटर जोड़े ग्रीन लीव्स जोड़े मैं तुहानूं दस्सिया सी कि थैलामस दे बेस ते ही होंगे हैं, और जोड़े कलरफुल जोड़े पत्ते होंगे हैं एक फ्लावर दे, दोनों आपस दे विच सैपल्स एंड पैटल्स गैट फ्यूज्ड, फ्यूज हो गए, फ्यूज्ड मिलते हैं तो दैन दे आर कॉल्ड एज, उन्होंने एक नवी टर्म रखी हुई है साइंस च टैपल्स, उन्होंने टैपल बोल दें। तुसीं सिर्फ इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना कि जदों भी जी सैपल्स एंड पैटल्स फ्यूज मिलते हैं दैन असीं टैपल टर्म यूज़ करते हैं, उन्होंने ही असीं जी पैरीएंथ कहते हैं। क्लीयर, बहुत ईजी है। अच्छा हुण एक आपां इधरली साइड गल कर रहे सी एंथर दी, एंथर दे ना फिर अगे बच्चे 2 पार्ट है, 2 पार्ट नहीं है एक्चुअल
दो टर्म्स यूज़ करते हैं असी एंथर नूं लेके, मोनोथिकस एंड डायथिकस। मोनोथिकस एंथर केड़ा वाला? इफ देयर इज ओनली वन लोब, इफ देयर इज ओनली वन लोब, अगर इको ही लोब प्रेजेंट है, लाइक है टू लोब्स है ना, अगर इको ही लोब प्रेजेंट है लाइक इस तरह इको ही लोब फिलामेंट के उपर लगी हुई है एंथर दी, दैन इट विल बी कॉल्ड एज मोनोथिकस। और ए वाला की होया? दो ने डाई, दो ने। इफ टू लोब्स दैन असी उस एंथर नूं की कहांगे भी जी ये डायथिकस एंथर है। क्लीयर है? और जिहड़ा मोनोथिकस है, अगर एंथर मोनोथिकस होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ याद रखना है, क्वेश्चन आंदा हुंदा है कि मोनोथिकस एंथर ते डायथिकस एंथर दे विच पहला मेजर डिफरेंस तो आपां दसता कि लोब्स का डिफरेंस है, उधर एक लोब है एंथर दी, उधर टू लोब्स हैं। सेकेंड मेजर डिफरेंस है कि मोनोथिकस एंथर दे विच कनैक्टिव टिश्यूज एबसेंट होंदे हैं, डायथिकस दे विच कनैक्टिव टिश्यूज आर ऑलवेज प्रेजेंट। इहदे लई तुसीं मोनोथिकस दे विच कनैक्टिव टिश्यूज आर एबसेंट नहीं होंदे, डायथिकस दे विच कनैक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट। क्लीयर है जी? हुण आपां डायथिकस एंथर दी ही अगे फरदर गल करांगे कि इहदे विच ना चार लोब्स, दो लोब ने ते चार इहदे विच माइक्रोस्परेंजिया बने होंदे। इदां तुहाडे बुक दे विच डायग्राम भी बनी होएगी, चार खाने जे बने होणगे, ठीक है जी, जिन्हां नूं असीं माइक्रोस्परेंजिया। हुण असीं एंथर की गल कर रहे हैं ना, तो एंथर मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट तुहानूं मैं दस्सिया सी एंथर ने की किहड़े मेल गैमेट प्रोड्यूस करने हैं? माइक्रोस्परेंजिया। मैगास्परेंजिया तो प्रोड्यूस नहीं करने, मैगा किने करने सी? ओवरी ने। ठीक है, तो एंथर दे दो लोब, दोनों लोब्स दे विच दो दो अगे माइक्रोस्परेंजिया पे हैं, यानी टोटल किन्ने हो गए? चार। ठीक है, हुण चार है तो चार दे लई असीं एक टर्म यूज़ करते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट कहने हैं। हुण तुहानूं कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि हाँ जी किसी टेट्रास्पोरेंजिया दी एग्जाम्पल दो, किहड़े प्लांट दे विच अक्सर दिखते हैं, तो उहदे लई तुसीं एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, मस्टर्ड सरों दे जिहड़े बीज हुंदे आ उहदे विच सानूं टेट्रास्पोरेंजिएट ईजीली विजिबल हुंदे हैं। हुण जिहड़ी असीं दोबारा एंथर दी डायग्राम लैंदे आ, आपां इन्हां नूं पहलां की टर्म दित्ती सी कि यह की है? दो लोब्स हैं एंथर दियां। ठीक है, सब तो पहला ये वाला पार्ट है एंथर, फिर आ की है दियां दो लोब्स। हुण तुसीं इहनूं पोलन सैक, पोलन सैक्स कहना कि दो पोलन सैक हैं, एक आ पोलन सैक है जी, एक आ पोलन सैक है। हरेक पोलन सैक दे अंदर की पे हैं? इन्हां पोलन सैक्स के अंदर की पाए हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, जिन्हों असीं पोलन ग्रेन्स भी कहने हैं। ठीक है, एक नवी टर्म आ गई माइक्रोस्पोरेंजिया लई, जिन्हों आपां पोलन ग्रेन्स भी कहने हैं। ठीक है जी, इत्थों तक क्लीयर है? फरदर तुहाडे चैप्टर दे विच अगली जिहड़ी टर्म है वो हैगी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। की हुंदी है? व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नूं थोड़ा जिहा सानूं वास्ट टॉपिक है, इहदे लई असीं डिटेल जिहड़ी वीडियो है वो नैक्सट वीडियो च गल करांगे। इत्थों तक अपना चैप्टर दे विच अगर तुहानूं कोई भी किसी किस्म की किसी भी टर्म च कोई कन्फ्यूजन है,
कोई चीज़ नहीं समझ आई तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन च जाके पूछ सकते हो कि आपां उहदे उपर दोबारा डिस्कस कर लांगे। और जदों तुहाडी पूरी तसल्ली हो जाएगी कि तुहानूं हर एक टर्म समझ आ रही है, फरदर आपां अगे नैक्सट प्रोसीड करांगे। मिलदे हां जी नैक्सट वीडियो दे विच। टिल दैन तुसीं मेरी वीडियो नूं अगर पसंद कर रहे हो तो लाइक एंड सबसक्राइब कर दिओ मेरे चैनल नूं। थैंक यू सो मच। और इसी तरह बायोलॉजी दे नूं ईजी वे नाल पढ़न दे लई तुसीं मेरे चैनल नूं फॉलो करते रहना। थैंक यू सो मच।